Hello, hello, hi everyone. Hello, hi everyone. So I will wait for 2 minutes or few seconds just so that people can join, whoever is live now. Hi Satish, hi Rish, hi Soumya. Yes, I can see people are joining. So hi viewers, hi. I'm happy to see all of you. So uh, so today we will be going live with Shahreen. Hi Shahreen. Hi Ravi. Yes. Mahjabeen also joined. Hi everyone. Hi. So today live is going to be very valuable because we will be getting lot of inputs for Instagram, how to grow on Instagram. We will be talking much about Instagram. So in Instagram, like how to grow the business through Instagram is the topic for the day. And the thing is like we were talking about like hashtags, how to reach maximum number of audience, and how to viral your reels, how to put the stories, how your stories can get you more business. Many things we'll be discussing along with Shahrin today. So I hope everyone is excited here. Yeah, I can see people. Yes, people are joining here. Yes. So I will be firstly, I would like to thank you all of you for attending the live session with me, and along with me, Shahreen, I will be inviting her. And the small thing which I want to tell you, like these days, Instagram is growing a lot as TikTok is stopped. So our Instagram is booming a lot, like YouTube Shorts. So the main thing is like we have to utilize this opportunity to grow in the business. Yeah, hi Shabnam. Hi Shireen. Very nice to see Hi, you. Nilofer. Yeah, I'm good. How are you doing? Yeah, I'm doing good, doing great. Yeah, I'm very thankful for giving the time to you. I'm very Arey, thankful. yeah, no. I'm thankful to you, okay, for inviting live. Okay, आपने invite किया so that we can share more value to the Yes, audience. Okay, yes. so Yeah, thank you for the opportunity. Yeah, yeah, same here, yeah. Actually, yeah. my dear friends, she's one of my very good friend, and also I follow her a lot because in a very short period of time, she has boomed into the Instagram and she has done a lot of good earnings. एंड शहरीन में जैसे इंस्टाग्राम नाम आता है पीपल विल थिंक अबाउट रील्स रीच हैशटैग ये ऐसे वैसे वर्ड्स Yes. है ना जो नए भी हैं हाँ, और उसी के पॉपुलैरिटी से हम लोग को बिजनेस भी आता है तो हाँ. वो सब जानने से पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका मैं खुद देना चाहूंगी मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कुछ Definitely, definitely. कैन यू अपॉर्चुनिटी Yes, yes. Yes, थैंक you यू can. थैंक यू यार एक्चुअली शहरीन जो है मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और इनको मैंने ग्रो होते हुए देखा है एक कंपनी में काम करते थे उसके बाद होम में उसके बाद उनकी बेबी के बाद उन्होंने अपना जॉब क्विट भी किया फिर बहुत अच्छा उन्होंने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखा डिजिटल मार्केटिंग सीखा एंड शी लर्न अ लॉट एंड विद इन अ फ्यू आवर्स शी हैज हिट द सोशल मीडिया एंड उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा अर्निंग किया है एक मार्वलस जर्नी उन्होंने उन्होंने अपना तय किया है तो शहरीन आप मुझे ये बताइए कि आपके मन में पहले थॉट कैसे आया कि सोशल मीडिया में आपको कदम रखना चाहिए? Why you got that हाँ. idea? What motivated you?
हाँ, अभी देखिए, आई वॉज डूइंग माई जॉब वेरी वेल, एमएनसी कंपनी में आई वॉज वर्किंग, ओके, आई एम अर्निंग गुड, बट बिकॉज ऑफ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइक कि हम लोग को वो कि एक स्टेप लेना पड़ता है फॉर फैमिली, राइट? Yeah. लेकिन वी ऑल्सो नो दैट वी हैव दैट एबिलिटी, राइट? वी हैव दैट स्किल, वी हैव दैट कैपेबिलिटी दैट वी कैन अचीव समथिंग, ओके? सो इसलिए तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा नहीं होना है कि फिर बाद में भी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से हम क्विट करें, कहीं लैक करें। एंड बिजनेस में तो मेरा इंटरेस्ट है ही है, सो लगा कि ओके चलो लेट्स गो डिजिटली। सो मुझे ये लगा कि नॉट ऑफिस, ओके, नॉट ओनली जॉब नहीं होके व्हाट इज द अदर थिंग दैट वी कैन बिल्ड आवर करियर। देन आई फाउंड दैट डिजिटल इज द बेस्ट थिंग, कि वो कहाँ से भी कहीं से भी कर सकते। Okay, we can manage both our family as well as our profession. Okay, initially we have डेली आप challenges से गुजरती हो, as I know, I have seen your profiles and few in the offline also. You will go through with lot of up and down in the day to day daily life. फिर भी आप अपने आप को yes करके maintain करते हो. What is the secret behind it? The only one secret I already told in one of my video, that guts is nothing but in business general urge to get success. Okay, so we have that urge. Okay, whatever urge I have, the same urge you have, right? कि आप IT background से हो, 8 years experience you have, okay, because of responsibilities you have quitted that, okay, and digitally आपका platform ही नहीं है, लेकिन you have that urge of achieving something, right? So आपने मुझे मेरा जर्नी देखा, okay, then you motivated yourself, okay, कि मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ा, that you took step and you started working with me, okay? So this is the meaning, exact meaning of urge, कि कुछ तो करना है, right? अगर जॉब हो गया तो लाइफ खत्म, मतलब करियर इट्स नॉट एंड, okay, we can do more than a job. तो ये mindset we have, right? So in this way the journey started. Yes, we get initially बहुत सारे challenges होते, लेकिन if we focus on building our skills, okay, हाँ, अगर हम हमारे skills पे building करते हैं और consistently maintain करते हैं, okay, even though if we don't get results also, we stick to that and work for that, will definitely give success. Okay, एक time period में हमको definitely उसका result आता है. सही बात है यार, I appreciate. I go with your words. It's very nice. Yeah, definitely. Yeah. I go with mindset कि कुछ करना है तो पहले माइंड बना लीजिए, फिर कंसिस्टेंट रहिए, एंड नॉलेज इज पावर। अगर एक बार नॉलेज गेन कर लिया, कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, माइंडसेट है, तो डेफिनेटली वी कैन अचीव मेनी थिंग्स। yes right या okay, so let's, हाँ, एक बार व्यूअर्स को देखेंगे। हाय नरेश, थैंक यू उतन फॉर ज्वाइनिंग, हाय अनुपम, हाय राहुल, हाय इरशाद, चलो, हाय जाहिद मैम, आपका हॉल ऑफ फेम सेशन चल रहा है, हैंड वेव करते जा रही हूँ। यस हाँ मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है यार कि इंस्टाग्राम पे क्यों फोकस कर रहे हैं आजकल हम लोग ज्यादा, बिकॉज देयर आर सो मेनी सोशल मीडिया, बट इंस्टाग्राम इज बूमिंग जस्ट लाइक एनीथिंग। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर दैट? हाँ, सो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल आवर व्यूअर्स की सी दिस सेशन इज गोइंग टू बी फुल ऑन वैल्यू। ओके, प्रैक्टिकली हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हाउ यू कैन ग्रो योर बिजनेस ऑन इंस्टाग्राम। ओके, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रील्स, हैशटैग को किस तरीके से यूज करें, ओके, अपने रील को ज्यादा से ज्यादा रीच किस तरीके से लाए, एंगेजमेंट किस तरीके से ग्रो करे, ताकि यू कैन ग्रो योर बिजनेस, ओके, यू कैन ग्रो योर एंगेजमेंट। सो लॉट ऑफ वैल्यू we both are going to share. Okay, so stick till end, you are going to get amazing value, and whatever the doubts you have, every doubt we are going to clear it. Okay, so you can ask anything related to online business, we are there to guide you, me and Nilofer. Okay, so stick till end. So yes Nilofer, the first question is the best question. आप अच्छा मैम रिवील योर स्ट्रेटजी। यस, इतना है ना, सोशल मीडिया में सब कुछ है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, पॉडकास्ट है, मेनी थिंग्स आर कमिंग आल्सो, बट स्टिल वी आर कंसंट्रेटिंग मोर ऑन इंस्टा। व्हाट इज द रीजन? हाँ, देखिए अभी इंस्टाग्राम पे ना ज्यादा सा क्या हो गया, अभी टिकटॉक चले गया, राइट? आफ्टर टिकटॉक वी गॉट रील्स, एंड हियर कंप्लीट कंटेंट इज ऑफ इमेज एंड वीडियोस, राइट? इमेज एंड वीडियोस, वी ऑल नो, वी लव टू सी इमेजेस, वी लव टू सी वीडियोस।
ओके सो यहाँ पे फेसबुक पे क्या होता है, हमको बहुत मिक्स रहता है कंटेंट, मतलब कंटेंट रहता है, टेक्स्ट कंटेंट इन द एंड इमेज वीडियोस रहता है, लेकिन हियर lot of creativity people are using, whatever the creativity they are having they are using, okay, for the businesses, okay, and the content भी इतना entertaining format में है, okay, and people are, and this is the trend, right, and people are here, people are following trend, okay, as a business owners we should also follow the trend, right, so अभी अपने target audience attracted ये platform पे है, so definitely we should be available here, ओके सो हमारा मेन अटेंशन यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लीड्स, क्वालिटी ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ पीपल मिलते हैं अपने को, फेसबुक पे भी मिलते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है ना थोड़ा कि मल्टीपल माइंडसेट ऑफ पीपल रहते हैं, ओके, क्योंकि वो लॉन्ग बैक से है, वो यूज करे या ना करे, बट वी गेट मिक्स, लेकिन यहाँ पे ना या मिक्स ऑडियंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे वी गेट राइट टारगेटेड ऑडियंस, अगर हम राइट प्रॉपर में वर्क करें तो वी गेट राइट टारगेटेड ऑडियंस हियर, एंड मेन थिंग इज इंस्टाग्राम इज, मतलब अभी यहाँ पे एज आई टोल्ड दैट इट इज अ ट्रेंड ऑफ इमेजेस, वीडियोस एंड रील्स, राइट, सो इसी वजह से मतलब जहाँ पे वो जो रील्स वगैरह वीडियोस वगैरह आते हैं तो फोटो से ज्यादा इफेक्ट इनका होता है, तो एक ऐसा लगता है कि ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाती है कि भाई हम आंखों की बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपने इमोशंस भेज रहे हैं, लाइक डिसलाइक, वी आर आस्किंग समथिंग, यस, तो वहां पे अपने को मेन बेस्ट थिंग इंस्टाग्राम ने मतलब बहुत ही इजी किया क्या कि वो स्टोरीज में भी हम मल्टीपल टाइप ऑफ डिफरेंट क्रिएटिविटी पूछ सकते हैं एंगेज करने के लिए, कि हम क्वेश्चंस वहां पे पूछ सकते हैं, पोल्स पूछ सकते हैं, हम उनको बोल सकते हैं कि यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके, व्हाट इज योर फेवरेट प्लेस, और ऐसा नो वन बटन में ही उनका रिस्पॉन्स होता है, मतलब इससे क्या होता है ना एक पर्सनल टच होता है इस टाइप ऑफ स्टोरीज से, राइट, सो जो भी आपके पॉइंट को मैं ऐड करना चाहूंगी, आपने अभी पॉल बोला ना, पॉल के बारे में कि रिसेंटली इतना ड्यूरिंग लॉकडाउन, yesterday or day before yesterday I was going through the research on the affiliate marketing and how the people are earning to the Instagram and all. ये पॉल की वजह से ही one person has earned $5,000, ओके, सिर्फ यस नो पूछ के गूगल पे, बस इतना ही काम करके उसने किया, वो कैसे किया वो बट उसने किया यस नो पॉल्स क्रिएट करके ही बस। यस, ओके, सो हमको ना ये होता है कि हम किस तरीके से वो लगा सकते हैं, अगर समझिए आपके प्रोस्पेक्ट के कोई क्वेरीज हो सकते हैं, ओके, आर यू इंटरेस्टेड इन डू यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन, यस और नो, यस वो इंटरेस्टेड है, ओके, सो डू यू हैव एनी नॉलेज, डू यू फील दैट टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस एक्सपीरियंस इज नीडेड, एक क्वेश्चन पूछेंगे यस और नो, तो उसको वहां पे आंसर मिल जाएगा कि यस और नो, ओके, वो समझ रहा है कि यस, तो हम उनको रिप्लाई कर सकते हैं, ब्रदर इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस एक्सपीरियंस इज नॉट नीडेड, ओके, सो हाउ यू कैन स्टार्ट, आई विल गाइड यू, यू कैन पिंग मी, ओके, इस तरीके से हम उनको पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं, ओके, और इस तरीके से ऑप्शंस पूछकर हम उनके मतलब उनके जो भी क्या उनका इंटेंशन क्या है हम उनको जान सकते हैं, राइट, तो पुशअप दे सकते हैं, और एंगेजिंग भी होता है कंटेंट, ओके, सो इस तरीके से होता है, हाँ, स्टोरीज से हम उस तरीके से एंगेज कर सकते हैं अपने टारगेट ऑडियंस से, नाइस, ओके, राइट, हाँ, सो देखो इतने सारे ऑप्शन है, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इन इंस्टाग्राम, जैसे हम एक पोस्ट करने चाहते हैं, दे विल आस्क फॉर वेदर यू आर गोइंग टू पोस्ट स्टोरीज, रील्स, IGTV लाइव जाना चाहते हो, तो बेटर द बेस्ट इज अमंग देम व्हिच इज द बेस्ट, ओके, सी एज अ बिजनेस ओनर आपको सारे ट्राई करना है, लेकिन बेस्ट मैं आपको बोलूंगी आपका ब्रांडिंग, ओके, आपका क्रेडिबिलिटी मार्केट में बिल्ड करेगा वो है लाइव, क्योंकि अगर हम लाइव आ रहे हैं तो हम देखिए अयान जो भी है, अयान से हम पर्सनली मतलब कनेक्ट हो पा रहे हैं कि हाय अयान से बात कर पा रहे हैं, उनके क्वेरीज को क्रिएट कर पा रहे हैं, राइट, जो भी हमारे टारगेट ऑडियंस है यहाँ पे क्या हम उनको कनेक्ट कर रहे हैं, ओके, यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, उनसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, इससे क्या होता है ना एक बॉन्डिंग बिल्ड हो जाता है अपने और अपने ऑडियंस के बीच में, सो रिलेशन बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस, और वो रिलेशन बिल्ड कब होगा, हमारे लाइव सेशंस में बहुत ही अच्छा तरीके से होगा, ओके, सो ये ऑडियंस से हम अपने टारगेट ऑडियंस से लाइव आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, अगर आप बिगिनर भी हो, ओके, तो लाइफ के अगर आप बिगिनर भी हो, आप नेक्स्ट क्या बोलोगी, लाइफ इज द बेस्ट ऑप्शन
If suppose I am हाँ committed लाइव, to go live for some time, then which option I should select ओके, in Instagram? हाँ यू कैन कीप वीडियोस, मतलब अगर वीडियोस लगाना भी इनिशियली मुश्किल हो रहा है तो इन शॉर्ट यूज करके आप बहुत सारे है ना, तो उस तरीके से रील्स बना सकते हैं. वंस द पीपल आर लाइकिंग योर कंटेंट यू कैन स्टार्ट मेकिंग वीडियोस. देखिए वन ट्रूथ, ओके, वन ट्रूथ कि अगर आप लॉन्ग स्टैंडिंग में, अगर इफ यू वांट टू सस्टेन इन ऑनलाइन और डिजिटल फील्ड, यू हैव टू मेक वीडियोस टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड. ओके, अभी करंटली अगर आप कैमरा शाई हो, यू आर नॉट एबल टू मेक वीडियोस, ओके, टेक अ स्टेप, टेक अ स्टेप, ओके, नो प्रॉब्लम. एक 10 वीडियोस के बाद यू विल लव, यू विल, इट विल बी लाइक अ हैबिट. Okay, so you can take a step and you can start making videos. Instagram has given a beautiful option that reels, 15 seconds of content, right? Yeah. 15 seconds के लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, ज्यादा एडिटिंग नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं, जो अपना व्यू है वो आप शेयर करना है, राइट? रील की सो बात आ गई, ओनली, आपके लिए एक अच्छा हाँ, क्वेश्चन भी आ गया दिमाग में. यू रिमेम्बर आपका या, एक रील बहुत वायरल हुआ जो 25,000 भी क्रॉस किया. कैन यू एक्सप्लेन मी राइट राइट, समथिंग अबाउट दैट रील? यस डेफिनेटली डेफिनेटली. सो देखिए जो उस रील में ना, इन दैट रील आई ट्राइड समथिंग न्यू. ओके, व्हाट आई ट्राइड कि आई थॉट दैट माय ऑडियंस शुड फील लाइक, ओह व्हाट इज दिस, मतलब उनके लिए थोड़ा एक क्या एक सस्पेंस जैसा होना के लिए, होना बल्कि मैं सोच रही थी, ताकि दे शो इंटरेस्ट. ओके, वो इंटरेस्ट बताएं और रील को चेक करें. तो आई हैव केप्ट अ कैप्शन दैट नो द वैल्यू ऑफ 2 hours, ओके, इन योर लाइफ. ओके, तो वो अगर कोई कैप्शन पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि अरे एक मेरे लाइफ में 2 minutes का, 2 hours का वैल्यू क्या है, लेट्स चेक. मतलब वो क्यूरियोसिटी वहां पे होता है. अगर हम लगाएंगे नॉर्मली कि अफिलिएट अर्निंग, मेक मनी ऑनलाइन, अर्निंग थ्रू ऑनलाइन अफिलिएट बिजनेस, तो उतना क्यूरियोसिटी बिल्ड नहीं होता. But I am working for 2 to 3 years and I am making money using affiliate marketing. So that same thing I have represented. ऐसा नहीं कि हम दिन भर बैठ के काम कर रहे हैं और बोल रहे हैं वहां पे 2 hours. No. Okay, we are working for 2 to 3 hours. Why? Because we are working on multiple things, right? Not only one thing. Right. So वो exact thing हम एक curiosity, एक क्रिएटिव वे में मैंने उस वहां रील में लगाया. तो नाइट टू नाइट, ओके, उस दिन नाइट मैंने लगाया, मॉर्निंग देखकर मेरे पास 100 लीड्स आ गए. You don't believe, like I have shared the screenshot also, right, in the group कि I have got so many responses. lot of people, मतलब वो लोग ने फॉर्म फिल किया बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए. So this is the power of going viral. This is the power of going good reach. Okay, अगर if you also want to make your content go good reach, okay, अगर अच्छा कंटेंट आपका रीच जाना है तो you have to keep something, some things in mind while posting the content, like hashtags ho, okay, you can keep and make it some creatively. ओके, थोड़ा क्रिएटिव से अपना कंटेंट को बनाइए ताकि इट इज लाइक वो एंटरटेनिंग भी हो. एंटरटेनिंग मतलब थोड़ा म्यूजिक को ऐड कर और कैप्शन थोड़ा अच्छे से लगाकर, इस तरीके से वी कैन कीप. ओके ओके, या, और आपका आई डोंट फील दैट, हाँ बोलिए. हाँ, डोंट थिंक दैट कि आप 2-3 रील्स लगाएंगे और समझेंगे कि मेरा ये रील वायरल जाएगा, इससे रीच नहीं आ रहा. कंसिस्टेंसी इज द की, एज आई टोल्ड, कि कंसिस्टेंटली आपको बनाना है. आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा रील आपका वायरल जाएगा, जैसा मेरा हुआ था. तो डेफिनेटली इट विल हैपन. सो थोड़ा आप क्या करना है, मेन थिंग आपको क्या करना है कि जो टॉप, ओके, जो नॉट इंडिया, ओके, इंडिया के नहीं, ओके, जो अदर कंट्रीज के जो टॉप इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको एक बार आप सर्च करिए, उनके रील्स को देखिए, उनके कंटेंट को देखिए. बहुत सारे आइडियाज आपको वहां पे आएंगे और दैट आइडियाज विल बी न्यू फॉर योर ऑडियंस. ओके, वो न्यू होंगे आपके ऑडियंस के लिए, तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव फील करेंगे आपके कंटेंट को देखने के लिए, राइट? सो इस तरीके से आप कर सकते हैं. वालेकुम अस्सलाम अयान. एक और एक अच्छा वर्ड होता है जो मतलब दैट इज द सोल ऑफ इंस्टाग्राम, हैशटैग. लेट्स टॉक अबाउट यार, ये क्या हैशटैग ऐसा, मतलब इतना हाइप वर्ड है, मतलब इजी है बट लोगों को डर भी लगता है यूज करने से. तो हाउ टू यूज द पर्टिकुलर हैशटैग, कब कब कितना यूज करना चाहिए, व्हिच इज द रॉन्ग, राइट, व्हिच इज द रॉन्ग, एंड हाउ मेनी हैशटैग व्हिच शुड यूज इन आवर पोस्ट, इसके बारे में कुछ बताओ. या डेफिनेटली. सो अभी देखिए मेन इंस्टाग्राम का मोटिव क्या है, वो नॉट योर मोटिव. व्हाट इज द इंस्टाग्राम मेन मोटिव? कि दे वांट टू कीप देम, उनके ऑडियंस को एंगेज रखना है, राइट? उनके ऑडियंस को इंस्टाग्राम पे लॉन्ग स्टैंडिंग के लिए यूज करना है, राइट?
मतलब उनको एक यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस देना है, जो भी आपको चाहिए वही कंटेंट वो बताना है इंस्टाग्राम। अगर देखिए, अगर आपको एक फैशन रिगार्डिंग आप पर्सन हो, तो अगर इंस्टाग्राम फैशन रिगार्डिंग अच्छा अच्छा कंटेंट आपको बता रहा है, इफ इट इज शोइंग रिलेटेड टू योर इंटरेस्ट, देन डेफिनेटली यू विल स्टिक ऑन इंस्टाग्राम, राइट? इन द सेम वे, हाँ, तो ये सारे थिंग इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम इज विल ट्रैक ईच एंड एवरीथिंग। आप क्या कंटेंट लगा रहे हो, ओके आप कौन से कंटेंट को लाइक कर रहे हो। इफ सपोज यू आर अ ट्रैवल पर्सन, ओके, एंड आप फीड को स्क्रॉल कर रहे हो, वहां पे एक ट्रैवल वाला पोस्ट दिखा, ओके ओके, कोई भी गोवा, ओके, तो वहां पे उस पोस्ट पे आप लाइक किए, एंगेज किए, वहां पे ज्यादा मतलब वहां पे ज्यादा देर स्पेंड किए, उसको शेयर किए, उसके बारे में डिस्कस किए, एवरीथिंग इज इंस्टाग्राम रिकॉर्डिंग, okay, everything Instagram is recording, and it come to an analyzation ki, okay, ki okay, this person is interested in traveling and he is more interested in Goa, okay, so whenever some person, जो भी person है, okay, कंपनी से जब गोवा के बारे में अगर एड्स चलाएंगे, तो इंस्टाग्राम विल कम टू एन आइडिया दैट शहरीन इज इंटरेस्टेड इन गोवा, देन वो एड आपको दिखेगा। इस तरीके से ईच एंड एवरीथिंग विल ट्रैक, राइट? सो हैशटैग क्यों इंपॉर्टेंट है? हैशटैग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर जो भी आप कंटेंट लगाते हो, ओके, जो भी आप कंटेंट लगाते हो, हैशटैग हम लगाते हैं, मतलब क्या है, उस कैटेगरी में आप बोलते हैं इंस्टाग्राम की ग्राम को कि दिस कैटेगरी ऑफ पीपल आर रिलेटेड टू माई ऑडियंस। अभी अगर आप लगा रहे हैश मेक मनी ऑनलाइन, तो आप इंस्टाग्राम को बता रहे हैं कि दिस मेक मनी ऑनलाइन इंटरेस्टेड पीपल आर माई टारगेटेड ऑडियंस, ओके। तो जो भी इस हैशटैग को टैग करेगा, वो सर्च करेगा या इस टाइप ऑफ कंटेंट देखेगा, उनको मेरा पोस्ट देखना है, दिखना है, राइट? सो ये एक मेन रीजन होता है कि हम हैशटैग क्यों लगाते हैं। हैशटैग इज नॉट एवरीथिंग। बहुत सारे लोग समझते हैं कि बाकी कुछ काम नहीं आता, हेडिंग मतलब हेडर काम नहीं आता, ओके, लेकिन हैशटैग ही एक मेन रीजन है जो वायरल जाने का। नहीं, इट इज वन पार्ट, ओके। आपका जो पोस्ट होता है उसका क्लैरिटी होता है, उसका जो हेडलाइन होता है, आप कितना अट्रैक्टिवली उसको एंगेज कर पाते हैं अपने ऑडियंस को, उनका अटेंशन ग्रैब करवाते, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, नॉट ओनली हैशटैग। मैं तो देखो Okay. 3-4 हैशटैग प्रेफर करती हूँ लगाना, बट बेसिकली आप कितने लगाते हो और आप तो कौन से लगाते हो? हाँ, मैं आपको बताऊंगी नीलोफर, एक बार हम देखेंगे कमेंट्स, मतलब क्या आ रहे हैं क्या, ओके। सो People want to मैम, go on आप लो टिकट क्लोज नहीं करते क्या? हाँ, नहीं, मैं बहुत कम लो टिकट क्लोज करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि प्रो में क्या वैल्यू है, राइट? और प्रो में उनका अर्निंग किस तरीके से होगा, और जो भी मेरे ऑडियंस है उनको प्रो में ज्यादा मतलब हाई लेवल ऑफ वैल्यू मिलेगा और हाई लेवल ऑफ अर्निंग भी मिलेगा, राइट? अगर जो लॉन्ग स्टैंडिंग के लिए है, मैं उनको क्लियरली एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों प्रो से जाना है, ओके। अगर वो लॉन्ग स्टैंडिंग के लिए नहीं है, उनका रियली कुछ इश्यू है बजट को लेकर, देन आई सजेस्ट स्टैंडर्ड और प्रो, लेकिन आई गिव देम अ क्लैरिटी दैट व्हाई दे हैव टू गो विथ प्रो। सो वो क्लैरिफिकेशन के बाद वो डेफिनेटली प्रो पे ज्यादा इंटरेस्ट रखेंगे, ठीक है। सो इसीलिए मेरे प्रो सोल्स ज्यादा होते जाहिद। ओके, मैम आप नेटवर्क मार्केटिंग भी करते हो? नहीं जाहिद, मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करती। जो नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हैं, उनको ऑनलाइन बिजनेस किस तरीके से ग्रो करना है, डिजिटल मार्केटिंग रिगार्डिंग, मैं उनको ट्रेन करती हूँ, ठीक है। आई डू एफिलिएट मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। हाय अमरजीत, हाय आकाश नायक। सो इफ यू गाइज ऑल्सो हैव एनी क्वेरीज और एनी क्वेश्चंस, आप पूछ सकते हो, बीच हम डिस्कशन करेंगे। आपके कोई भी डाउट्स है, आप प्लीज यहाँ पे पूछ सकते हो, राइट नीलोफर? Yeah, we will give them chance to come live with us because few requests have come. Yeah, So yes. हाँ, एक बार हमारा हाँ, हम आपको देंगे, मौका देंगे, ठीक है? We'll give yeah, definitely. Yeah, okay. So whatever your queries, you can mention here. Yes. तो शहरीन वही पूछ रही थी कि कितने हैशटैग आप डालते हो और कौन से डालते हो आप? हाँ, देखिए, इनिशियली यू कैन यूज 10 to 15, ओके, बट आई सजेस्ट, अगर जब एक बार आप प्रिफर मतलब अच्छे से एक्सपर्ट हो जाते हो हाउ टू यूज हैशटैग, व्हाट हैशटैग्स यू हैव टू यूज, ओके, देन definitely you can go with 5 to 6 is enough, okay, but initially you can go with 10 to 15, okay. So let me tell you ki what are the common mistakes people do when using hashtags,
ओके Yeah. कि वो बहुत सारे लोगों को होता है कि कुछ ना कुछ लगा देते हैं हैश। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग लगा रहे, हैश डिजिटल मार्केटिंग, हैश सोशल मीडिया मार्केटिंग, हैश एफिलिएट मार्केटिंग। आप खुद देखिए कि कितने लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, कितने लोग एफिलिएट मार्केटिंग को ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हैं। वो सारे लोग भी वो कीवर्ड यूज कर रहे हैं, आप भी वो यूज कर रहे हैं, तो आपका जो वहां पे कंपटीशन होगा, द कंपटीशन इज वेरी हाई देयर, राइट? सो द चांसेस ऑफ गोइंग हाई, ओके, फील्ड पे हाई जाने के जो चांसेस होंगे वो वेरी लेस होंगे, राइट? सो बिना रिसर्च किए अगर आप हैशटैग्स लगाओगे देन इट वोंट वर्क, ओके? जस्ट स्पेंड सम टाइम। तो मैं आपको बिगिनिंग में आपको इनिशियली मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स यू पीपल डू व्हेन इट कम्स टू हैशटैग, ओके? वो लगाते हैं कि कॉमन यूज्ड हैशटैग्स, एज आई टोल्ड दैट, हैश डिजिटल मार्केटिंग, हैश जर्नी, हैश लव, हैश टाइम पास, मतलब कुछ भी, हाँ, हैश वर्क फ्रॉम होम, ओके, ऐसा होता है। नेक्स्ट, हाँ, और ये होता है कि इरिलेवेंट हैशटैग्स लगाते हैं। अगर आप समझिए कि आपका जो प्रोडक्ट है, ओके, आप एक ब्यूटिशियन हो, मतलब एक मेकअप आर्टिस्ट हो, ओके, अगर आप हैश ब्यूटी लगाओगे, एग्जाम्पल हैश ब्यूटी लगाओगे, तो देखिए नेचर का ब्यूटी भी जो नेचर के लिए यूज करते वो लोग भी यूज करते हैं हैश ब्यूटी, राइट? या कोई भी कोई पिक्स के लिए कोई लगाते हैं हैश ब्यूटी। लेकिन आपका जो बिजनेस है, हाँ, वो स्पेसिफिक नहीं है, राइट? इरिलेवेंट होता है, वो ब्रॉड होता है, तो वो बहुत सारे टारगेट, मतलब बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो इंस्टाग्राम को कैसा पता चलेगा कि ये लोग आपके टारगेट ऑडियंस है? आपके टारगेट ऑडियंस को ने जो मेकअप में इंटरेस्ट रखते हो या आपके सर्विसेज होना है, तो आप लगाना है हैश मेकअप आर्टिस्ट, ओके, या हैश मेकअप स्पेशलिस्ट, इस तरीके से। सो जो भी लोग इस तरीके से प्रोडक्ट सर्च करेंगे या मेकअप प्रोडक्ट्स, ओके, इस तरीके से जो भी सर्च करेंगे आपके प्रोडक्ट सामने आएंगे, राइट? सो ये होता है डिफरेंस कि हैश ब्यूटी अगर लगाओगे तो नेचर रिगार्डिंग भी लगाते हैं हम हैश ब्यूटी, तो वो इरिलेवेंट होता है जब हमारे टारगेट ऑडियंस, रिलेवेंट टारगेट ऑडियंस नहीं आते। सो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करना, ओके? और स्पेसिफिक, जैसा मैंने बोला कि स्पेसिफिक आपको यूज करना है, ओके, स्पेसिफिक यूज करना है। अगर आप समझिए कि आपका जो बिजनेस है, ओके, आपका जो बिजनेस है वो वेट लॉस फॉर वुमेन ही है, ओके, सो हैश वेट लॉस अगर आप लगाओगे, देन व्हाट हैपन, जो भी वेट लॉस के रिगार्डिंग लोग है, ओके, उनको दिखेगा, लेकिन योर प्रोडक्ट इज ओनली फॉर स्पेसिफिक पीपल, दैट इज वुमेन, राइट? सो स्पेसिफिक यू हैव टू मेंशन दैट हैश वेट लॉस जर्नी फॉर वुमेन और हैश वुमेन वेट लॉस, इस तरीके से। सो whoever are interested in such type of products, okay, they उनको वो आपका प्रोडक्ट या आपका पोस्ट दिखेगा, देन द राइट टारगेटेड ऑडियंस आपको मिलेंगे। सो ये डिफरेंस होता है। नीलोफर, इज दैट क्लियर? मतलब क्लैरिटी मिला कि व्हाट वी हैव टू? हाँ, एक बार पूछते हैं ना ऑडियंस से, समवन वांट टू कम लाइव? यस, हाय ऑल। हाँ, एंडिंग में हम पूछेंगे, ओके, एंडिंग में हम करेंगे क्योंकि डिविएशन नहीं होगा, हाँ, फिर प्रॉब्लम हुआ तो मुश्किल होगा। अभी मेन टॉपिक पे आते हैं। आप ये बताइए कि इंस्टाग्राम को यूज करके हम बिजनेस को और कैसे ग्रो कर सकते हैं? आपने जैसे हाँ, हाँ, तो इंस्टाग्राम पे भी होती है, कुछ टेक अवेज भी होते हैं जिसको रेगुलरली बेसिस पे करना चाहिए, कैसे हाउ वी कैन ग्रो इंस्टाग्राम पे? मतलब हाँ, हमको स्टोरीज लगाना है, जैसा हमको मालूम है कि स्टोरीज लगाना है, लेकिन स्टोरीज में भी हम इस तरीके से लगाना है कि रिलेटेड टू हमारे टारगेट ऑडियंस, ओके, और एंगेज करने के लिए वहां पे जैसे मैंने बोला कि पोल्स, ये सारा कुछ हम यूज कर सकते हैं ताकि हम हमारे टारगेट ऑडियंस को हो सके, मतलब एंगेज हो सके। सो ऐसा नहीं कि कुछ भी डालना है तो डाल दिए, ऐसा नहीं। आपको ये सोचना है कि इज दिस कंटेंट और इज दिस स्टोरीज विल, मतलब वो उनके लिए वैल्यूएबल होगा या नहीं होगा। इफ यू आर पोस्टिंग सम रिलेटेड टू मोटिवेशन ऑल्सो, okay, if you are posting some video related to motivation also, your audience should understand, उनको वो एक ट्यूनिंग जैसा होना है, राइट? एक ट्यूनिंग, एक सीडिंग जैसा होना है माइंड में कि ओके, इफ वी डोंट टेक एक्शन नथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट, ओके, हमको एक्शन लेना है। सो इस तरीके से एक ट्यूनिंग, सीडिंग होना है उस मोटिवेशन कंटेंट से, देन ओनली यू हैव टू कीप, ओके। एंड इंस्टाग्राम पे you have to focus, मतलब कोई सा भी सोशल मीडिया में, आई एम टेलिंग व्हाटएवर द सोशल मीडिया, बट इंस्टाग्राम में you should be like
फेसबुक हो या इंस्टाग्राम पे हो, यू शुड बी कंसिस्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि some users are following you here and some users are following there. There ओके also. हाँ, तो वो मतलब यूनिक है कि यहाँ पे थोड़े लोग हैं और वहां पे थोड़े लोग हैं, जो इंस्टाग्राम के लोग फेसबुक पे नहीं करते, फेसबुक के लोग इंस्टाग्राम पे नहीं करते. सो आपको दो जगह कंसिस्टेंट रहना है, ताकि दो जगह आपके ऑडियंस को आपके वजह से वैल्यू मिले और वो आपके बिजनेस में आए, राइट. सो इस तरीके से आपको जो भी सिलेक्ट कर लेना है कि ये प्लेटफॉर्म्स मेरे बिजनेस के लिए सही है, तो वो प्लेटफॉर्म्स पे आप जाएं. ओके वो प्लेटफॉर्म्स पे आप एक्टिव रहे. तो किस तरीके से एक्टिव रहना है, कंटेंट पोस्ट करना है, वीकली वंस तो भी आपको लाइव जाना है डेफिनेटली. ओके क्यों लाइव जाना है, इट डजेंट मैटर कि कौन आ रहे, कितने लोग आ रहे हैं, क्या हम ठीक से डिलीवर कर रहे या नहीं कर रहे, इट डजेंट मैटर, गिव योर बेस्ट. ओके अगर वो दो लोग भी आए तो ठीक है, यू आर प्रोवाइडिंग वैल्यू टू टू पीपल, राइट. हाँ सो वो आगे आगे या यू हैव टू गो वीकली लाइव. ओके इससे क्या होता है ना, आप ही समझिए, देर इज वन लाइक ह्यूमन साइकोलॉजी कि कोई भी चीज को, इफ समथिंग इफ वी सी कंटिन्यूअसली फॉर 7 times रिपीटेडली, ओके कम ड्यूरेशन में इफ वी सी 7 times ओके रिपीटेडली, सो एज पर आवर साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, वी क्या बोलते हैं उसके ऊपर ट्रस्ट, हाँ वी फील अ कनेक्ट एंड ट्रस्ट एक बिल्ड होता है, उसके ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता है, उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होता है. सो इन द सेम वे अगर आप अपने ऑडियंस के सामने जाओगे, उनको वैल्यू दोगे, उनके क्वेरीज को सॉल्व करोगे कंसिस्टेंट बेसिस पे, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू ट्रस्ट यू. Right, if you are sure that whatever you are providing, the product or service, it is 100% helpful to them, go in front of them. हाँ गो इन फ्रंट ऑफ देम. ऐसा नहीं कि कभी कभी आप जाए, मतलब इस तरीके से हम हमारे ब्रांडिंग को या बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते इंस्टाग्राम पे, कि आपको मल्टीपल थिंग्स ट्राई करना है. अभी रील्स ज्यादा रीच दे रहा है, ओके यू डोंट नो हाउ टू मेक रील्स, बट यू नो दैट इट इज गिविंग लॉट ऑफ रीच, लॉट ऑफ बिजनेस, राइट, देन ट्राई रील्स. सो इस तरीके से हम डिजिटल में ये होता है ना कि ट्रेंड को हमको फॉलो करना. ऐसा नहीं है कि एक बुकिश एक चैप्टर हम मतलब ये पढ़ लिए तो ये जॉनर में ही मैं काम करूंगा, दूसरे में ट्राई नहीं करूंगा. दिस टाइप ऑफ माइंडसेट वोंट वर्क इन डिजिटल फील्ड. इफ यू आर इनटू डिजिटल फील्ड, वॉट एवर द ट्रेंड, कौन से भी न्यू फीचर्स आ रहे हैं, वॉट एवर द न्यू फीचर्स, यू हैव टू गो विद दैट. करेक्ट, हाँ एग्जैक्टली, देन ओनली वी कैन ग्रो. या ट्रेंडिंग में है वही यूज करके हम लोग बढ़ेंगे आगे, तो बिजनेस भी ज्यादा ग्रो हो जाएगा. तो हाँ, मेन क्या है, स्टोरीज बोल रहे हो, स्टोरीज डेली डालना है, हाँ, रिलेवेंट स्टोरीज, एंड वी शुड बी इन डेली विद आवर ऑडियंस, ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो, कंसिस्टेंटली काम करना चाहिए. हाँ, इससे माइंडसेट भी इम्प्रूव होगा yes, अपना, हमारा ज्वाइनिंग फैक्टर मतलब लोगों से होगा, तो बिजनेस में इम्प्रूवेशन आएगा. यूजुअली हम लोग बोलते हैं ना yes, कि बिजनेस लोगों से किया जाता है, प्रोडक्ट से नहीं किया जाता करके. yeah, right. If we go live with like our audience, की they will also feel कि हाँ भाई इनसे हम बिजनेस कर रहे हैं, तो ट्रस्ट फैक्टर कर सकते हैं, राइट, बिकॉज हाँ, क्योंकि यहाँ पे वी आर कमिंग, हम क्यों लाइव आ रहे हैं, क्योंकि हम उनके क्वेरीज को सॉल्व कर सके, उनको एजुकेट कर सके, उनको बता सके कि व्हाट द पोटेंशियल इज, राइट, डिजिटल में व्हाट इज द पोटेंशियल, राइट. उनके क्वेरीज को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, देन डेफिनेटली दे लव टू डू बिजनेस विद अस. एग्जैक्टली, ये हाँ या तो ये होता है. लीड्स मिल जाते हैं बहुत ज्यादा, और इंस्टा में हम हाँ अच्छे पोटेंशियल लीड्स मिल जाते हैं. दैट्स अ हाँ मेन थिंग, राइट. या राइट, यस. सो अभी मैं आप लोग के लिए एक अच्छा मतलब एक बेस्ट स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ. दोज हु आर हियरिंग लाइव आर द लकी पीपल, कि सी हाउ यू हैव लीड जनरेशन के लिए, ओके लीड जनरेशन के लिए. सो यू कैन ट्राई दिस टिप और या ट्रिक, ओके या स्ट्रैटेजी यू कैन से, कि अगर लास्ट टाइम मैंने टीम ट्रेनिंग में मैंने शेयर किया नीलोफर, होप यू हैव रिमेम्बर्ड, कि if you are targeting if you want to generate leads on Instagram, then one trick that you can do is सर्च बार पे जाइए, ओके सर्च बार पे जाइए और वहां पे कोई भी एक नेम को टाइप करिए, सपोज नीलोफर आप टाइप करिए, तो वहां पे आपको दिखेगा मल्टीपल मेनू में, आपको दिखेगा लोकेशंस दिखेंगे और बहुत सारे प्लेसेस दिखेंगे, हैशटैग्स दिखेंगे, ट्रेंडिंग दिखेगा. सो लोकेशन पे जाना है, लोकेशन क्लिक करना है, ओके. सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, यू कैन आस्क अस personally also, Nilofer or me, we both know that strategy, so we will guide you,
ओके, एनीवन यू कैन आस्क। ओके, सो सर्च बार पे जाइए, वहां पे कोई भी एक नाम टाइप करिए, तो वहां पे आपको दिखेगा इन मेनू कि ट्रेंडिंग रील्स एंड लोकेशंस। क्लिक ऑन लोकेशंस, राइट, क्लिक ऑन लोकेशंस एंड सर्च बार में वो नीलोफर का नाम डिलीट कर दीजिए। तो क्या होगा वहां पे, व्हाट हैपेंस, द रिलेटेड पोस्ट रिलेटेड टू योर लोकेशन, okay, you get an option that search nearby locations, nearby places. So select that nearby places. So if you select that, what happens, you get an पोस्ट, ओके, आपको दिखेंगे लोकल ऑडियंस के, आपके पोस्ट दिखेंगे वहां पे, जो भी बिजनेस रिलेटेड ऑडियंस है या जो भी ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। ओके, सो यू आर एन एफिलिएट मार्केटर, यू नो हाउ टू जनरेट लीड्स, you know how to do personal branding, you know how to what grow the business using digitally. So you can contact them, you can contact them by saying that okay, you first, आपको क्या होता है कि फर्स्ट उनके प्रोफाइल पे जाना है, फर्स्ट एंगेज विद देम कि नाइस कंटेंट, ओके, इस तरीके से एंगेज करिए, एंड देन यू कैन डू पर्सनल मैसेज दैट आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, आई हैव सीन दैट यू आर वर्किंग वेरी वेल, ओके, बट as a digital marketing specialist, I would like to give some suggestions so that you can give increase your followers, yeah, you can generate more leads. Are you interested to know? If yes, let's connect on call. Yes. इस तरीके से you can send a draft message. So if someone sees that okay, this person is, then he definitely he come to your profile, he check that okay, you are working well, you are earning, you are doing something related to online, you have done live also, okay, you are making videos, you are educating people, then obviously what happens, the trust and the credibility builds there, right? He trusts you and he says that okay, let's connect on call. Then on call, don't try to sell, okay, don't try to sell, just give value, tell them that how they can increase their business, guide them in a proper way. With your guidance only, they will ask at the end that what I have to do, if I want to grow, what I have to do, please suggest me. Yeah. Okay, so that type of value you have to give, definitely you get a project there. See, our main motive, yeah, definitely it works, and definitely it works. Lot of people does that, and I also do that. You guys can try. See, our ultimate goal is to expand our business, our ultimate goal is to serve lot of people, bring more clients into our business, right? So it's not like only selling one product or anything. In this way you get clients, ओके, बिजनेस क्लाइंट्स। अगर एक बार उनको आपका बिजनेस, आप उनके बिजनेस को ग्रो कर दिए, तो एवरी मंथ दे वांट सर्विस विथ यू, बिकॉज दे वांट टू ग्रो देयर बिजनेस एवरी मंथ, राइट? सो लॉन्ग टर्म विजन पे अगर आप चलोगे, सो इट विल वर्क वेरी वेल, राइट? यू कैन ट्राई दिस। या so how many of you loved it? How many of you loved it, or did you get some value? If you did not understand, you can directly DM us, me or Nilofer. We both will guide you. Yeah. So if you guys have any queries also, you can mention here. Okay. We would love to clear that queries. And कोई live आना चाहते हैं तो भी you're welcome with us. Any doubt? Yeah. If anyone want to come live also, you can. Yeah, meanwhile we will continue, Nilofer, whatever that topic is, so that yeah. So अभी आपका जर्नी जो इंस्टाग्राम से शुरू हुआ, तो इनिशियली इट वाज मे बी लाइक आपको भी इंस्टाग्राम पता नहीं था होगा, तो आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप आपने किया? आपको पता था इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड, बट प्रैक्टिकली जब आपको इम्प्लीमेंट करना था, तो व्हाट आर द थिंग्स? यस, या yes. So corporate life se when I entered into my this digital business field, okay, I was new to Instagram, I was not having even account भी नहीं था मुझे, but I have explored, मतलब YouTube में बहुत सारे videos मैंने देखा, okay, explore करती थी कि if they are using the trend, that music किस तरीके से लगाना है, so I have learned things by my own by doing research, okay, कि okay, how to add text. How you met Durga Rajesh? Ma'am, how you met Durga Rajesh? Okay. Yeah, this is a nice question. See, actually what happened, Durga Rajesh was not in my team previously. Okay. But when I used to take training sessions or anything, he used to, he calls me sis.
Okay, so I call him bro. So whenever I used to take session, he says that initially he earned like 6 to 7 thousand. Yeah, 6 to 7 thousand, I think. Yeah, 9,000. Okay, after that he was not getting leads. His business was stuck. Okay, he felt demotivated. He used to call me. We used to have a conversation that how the business is working on something. Okay, then after that I have started taking more sessions, okay, for my team. Okay, then he used to attend my trainings. And I worked consistently, and I have started my earning again. Okay, I have started my earning again. Then he felt that uh, after attending my trainings, he said that I want to work with you. I want your mentorship. Okay, I want your mentorship. So I don't want, I will rejoin again. So he joined again under me for my mentorship, and now he is working amazingly. You guys can see in just 1 to 2 months he has crossed like 6 figures. Okay, still now he takes matlab, that way it started. Previously he was not my previous, yeah, he was not in my team. See, this is the power of providing value without expecting anything. He was not in my team, but I was allowing him to my internal team trainings. Whenever he asked, I used to clear his doubts on calls. So that relation, that trust has built, that if I work with Sherin, then definitely her support will be there, right? So he felt that, and he rejoined again, and now he is working awesome. Yes, very nice. We can see his journey also. Yes, see, as a sponsor or as a mentor I can guide, but the implementation is his part, right? So I give lot of credit to him, but because he has the dedication that he implemented whatever he has learned, and he is growing. Very Okay, nice. so credit goes to him, but our journey started in that way. Yeah, I think Zahid, the doubt is clear now. Yeah. Yeah, continue with your journey. No, we were listening about your story. Like when you joined Instagram, you're not having the account, and you're I researching. was not having account. Yeah, I was doing research. I was observing lot of marketers who are doing well on Instagram. Okay, so whatever the effects they used to keep, I used to go and search on YouTube that how to add music, how to add text, how to add, how to keep effects. Okay, different effects. Okay, so how to add that, I used to do that. Whatever I used to see here, if I like, I used to go and search on YouTube, and I used to get a lot of videos there. In that way I have learned regarding Instagram. Okay, I have learned regarding Instagram. And technical part, okay, I have learned from my mentors. Okay, I have I am following multiple people. Okay, so from there I have learned things. But this effect one, okay, application one, features one, these I have learned on my own by doing research. Nice, Shahari. Nice. Your journey is very Yeah. awesome. And today you Yeah. give lot of valuable things, valuable to us, valuable points, mainly about reels, stories, hashtag, and posts. Thank you. Yeah, Yes, thank you. and your journey is also very awesome. I really appreciate your mindset and consistent. Yeah, thank you, thank you. You're also doing awesome. You're also getting back-to-back sales, right? With multiple responsibilities, new to this field, don't know anything regarding digital, but you are doing very well with consistently. Yeah. Without giving, give up mindset you don't have. That is the best thing. या वही कि एक्चुअली आई ट्रस्ट कि भाई कोई काम करना तो पहले माइंड बनाइए, फिर कंसिस्टेंटली करिए, नॉलेज गेन करिए, करते जाइए right. तो हो जाता है काम. ओनली थिंग इज लाइक Definitely. हाँ. check with the audience यार, something for you. Yes ma'am, thank you. जाहिद का रिप्लाई आपके लिए. Yeah, you're welcome, Zahid. So if you guys want to ask anything regarding business, you can ask. Not only Instagram, anything. If you want to ask, you can ask. Okay. Regarding online business, online trainings, anything. Yeah, anything regarding affiliate marketing, digital career. Okay, Instagram, Facebook, whatever you want, you can ask. So as I told, hope you have understood what are the mistakes people do when they use hashtags, like repetitive hashtags. Don't use repetitive hashtag. Okay, suppose like hash digital marketing coach. Again, people will use hash coach digital marketing. Okay, so repeated, you should not use. Irrelevant hashtags.
Don't use irrelevant hashtags. Relevant to your content you have to use. Okay, if you are targeting specific location, then put the hashtags of that specific location. Okay, so this one you can do. And targeting the hashtags with high competitive. Okay, high competitive. Agar see, a simple example I would like to take. In a room there are 100 people. It is very tough to identify you from 100 people. But in a room there are 5 people, 6 people, or 10 people. It is very easier. Okay, it is very easier when compared to 100 to identify you. In the same way, if you are using a hashtag which is high competitive, lot of people are using, then your post will go down. Okay, the what is main reason of posting your content or posting the content on Instagram, that you have to reach reach your target audience, right? You reach your audience as much as possible. That is the reason we are using social media, right? Exactly. So if you use such type of hashtags, what happen, your reach will go down. Why? Because you are using highly competitive hashtags. Okay, so you also get a doubt that, ma'am, you said that you should not use highly competitive. Then what hashtags we have to use? How we will understand that this is the competitive hashtag we should not use, right? Yes. Yeah, this doubt, obviously this doubt will strike in our mind. So you can go in Google and search that hashtag generator. So you get a tool there. Okay, so if you are posting related to suppose travel. Okay, yeah, so hashtag travel or travel you can post there. Okay, or then you get a lot of hashtags. Okay, you get lot of hashtags. So pick them as per your content. What hashtag will be related? Pick that, filter that. Okay, make a list of 10 to 15 and pick. Go and search this in Instagram search bar, that hashtag travel to Goa. Okay, see whatever the posts which are coming, you will see that 10,000 posts, 1 lakh posts, 1 million posts. If 1 million posts you are getting, it means what? Lot of 1 million people are using this hashtag. It means it is competitive. You should not use. If you are getting like 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, that's fine. Okay, you can feel that it is not that highly competitive. I can use. First thing, first checkpoint. And second thing is, you have to check that whatever the post you are getting, it is related to hashtag travel Goa or not. If you are not getting related post, then it means it is not a good hashtag. Okay, if you are getting the same content, it means what? The hashtag is good and the reach is also average. It is not highly competitive, then you can use that. Okay, so this type of research you have to do while using the hashtag. Yeah. So once you initially it looked like, ma'am, it is time taking, ma'am, it is like a lot of work, but see, you are putting your effort, time, preparing content, everything, but it is not reaching to larger audience, then the ultimate goal you won't reach, right? Yes. So you have to use this checklist and you have to select the hashtags. Yes. Yeah, इतना nice explanation है कि I think people have understood about the hashtags. Relevant Yes, hashtags. यार और एक क्वेश्चन होता है ना, देखो कि जैसे कि फॉलोअर्स होते हैं आपके, तो फॉलोअर्स एकदम से इतने बूम हो गए, तो व्हाट इज द सीक्रेट? ऐसे फॉलोअर्स कैसे बन जाते हैं? हाँ, नथिंग सीक्रेट कुछ नहीं। लाइव में जब वो विषय में बहुत लाइव आती थी, ओके, बहुत सारे लाइव आती थी, कोलैबोरेशंस आई यूज्ड टू डू कोलैबोरेशन विद लॉट ऑफ पीपल। उन्होंने अगर मेरे को इनवाइट किया तो आई यूज्ड टू इनवाइट सम पीपल। ओके, सो इस तरीके से कोलैबोरेशंस आते थे। उससे क्या होता है ना, उनके टारगेट ऑडियंस, आप उनके फॉलोअर्स, आपके फॉलोअर्स देखेंगे, राइट? अगर उनको वहां पे वैल्यू मिलेगा तो डेफिनेटली एक लाइव से हमको 30-40 फॉलोअर्स बढ़ जाते। सो इस तरीके से, उस तरीके से मैंने वो मंथ में बहुत सारे लाइव्स किए, कोलैबोरेशंस किए, तो फटाफट फॉलोअर्स बढ़ गए थे। क्या है कि लाइव आने से ही लोगों का ट्रस्ट फैक्टर इंक्रीज हुआ। हाँ, होता है, डेफिनेटली। हाँ, उनको पता चलता है कि ओके, इफ आई फॉलो देम देन आई गेट अ कंटेंट विच आई रिक्वायर्ड, राइट? सो देन डेफिनेटली दे फॉलो अस फॉर दैट कंटेंट। या, नाइस। So that's the reason कि आप live जाना है। If whoever are listening here, if you did not go live and if you want to come live, you are welcome now also. Okay, अगर एक बार भी you did not go to live,
Ma'am, please add me in your WhatsApp broadcast. Yeah, okay, Zahid, I will add you. Yeah, Anyone yes. want to come And on live, they can हाँ, come. if anyone, हाँ, मतलब you guys want to come, but because of that starting trouble, you are not able to, Yeah. then you can join us now. Okay, let's break that starting trouble. फियर फैक्टर हटाइए, एक बार लाइव हाँ, आइए, कोशिश करिए. इट कैन बी अ न्यू चांस फॉर यू आल्सो. यू कैन ट्राई. yes, yeah. Okay, if you guys have any questions, you can ask, or else let's end the live. Sure, sure. What's in your paper? हाँ, Yeah, I am very thankful यार, you share lot of valuable things today. Because अरे हमें पता thank you होता यार, है, thank you for calling. हमें पता होता है हाँ, इंस्टाग्राम में ये है, बट कुछ चीजें हम अटक जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हैशटैग जनरेटर अभी है, स्पेसिफिक हैशटैग्स हाँ, का है. इट वाज वेरी हाँ. रिलेवेंट पॉइंट्स यू हैव शेयर्ड विद अस, एंड योर जर्नी वाज आल्सो वेरी Yes. ऑसम. Thank you. And you, thank you once again, Nilofer, for like inviting me. Okay, for giving this opportunity to share a screen with you. हाँ, थैंक यू. हम और ज़्यादा करेंगे lives. Okay, and let's share lots of value together to the audience. एग्जैक्टली. Yeah. थैंक यू Okay. ऑल. So I think, yeah. Thank you for joining us. Thank you for listening to us. Okay. And once again, thank you, Nilofer. थैंक यू यार, थैंक यू ऑल. गुड नाइट. Yeah. Bye. बाय बाय.